about a chart, chart means something which is a graphical representation of data in a worksheet. कि कोई भी अगर आपके पास डेटा है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम पिक्चर के फॉर्म में देख रहे हैं, डेटा को विजुलाइज कर रहे हैं, दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ चार्ट. So, and with the help of chart, we can easily draw some comparisons and we can easily analyze the relationship and the growths of among the values and trends in the data. And also a chart will give you a perfect and an accurate analysis of your information. So, this means your chart. Now, when you in your book, first topic is components of chart. Now, as you can see on my screen, I have a data sheet, I have a worksheet with name of 5 students and their marks and their total. और इसका हमने चार्ट इसका बन गया है और हम इसके चार्ट के कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे. सबसे पहला है हमारा चार्ट एरिया. फर्स्ट जो है I'll just write also side by side chart area. Chart area is my complete area which is included in my chart. ठीक है, the chart area includes all the area and objects. जितना भी area इस chart ने cover किया है और इसके जो objects हैं, that is your chart area. Your second component is your category axis. Category axis को हम x axis भी बोलते हैं. वैसे x axis में आप क्या देख रहे हैं? x axis is your horizontal axis and you can see your names Anju, Manju, Ranjana, Kirti, Hemant. These are the names of the students and we have taken them at our x axis. So this is my category axis. Third is the value axis. Value axis again my y axis. Value axis हम कहेंगे हमारी y axis को. This one जिसमें हमने numbers लिए हैं, जैसे Anju is getting 65 marks in English. ठीक है, तो 65 you can see here with this blue. Blue line is representing the blue data series is representing English and the orange one is my Hindi and the total is this grey. I can change the colors also from here. I can very easily change the colors also. Okay, I can change the color pattern also. Now this thing is more clear. Number fourth component is my data series. Data series मेरी ये जो values हैं, these values like Anju has got 65, 67, 132. तो ये जो values plot हुई हैं corresponding to these marks and numbers, these are my data series. ये जो मेरे bars हैं, ठीक है, data series are the bars, slices or the elements that shows the data values. Fifth component is my category name. कैटेगरी नेम मीन्स कि जो मैं नेम दे रही हूँ, लाइक अगर मैंने एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मेरी मार्क्स आ गए हैं इंग्लिश हिंदी टोटल और इधर मेरे मार्क्स आए हैं, इधर मेरे सब्जेक्ट्स आए हैं एंड हियर वाई में मेरे मार्क्स आए हैं. सो दिस इज माय कैटेगरी नेम. देन प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया इज द एरिया, द विंडो विद इन द चार्ट एरिया. ये मेरा दिस इज माई कंप्लीट चार्ट. अगर मैं बाउंड्री पर सिलेक्ट कर रही हूँ, यू कैन सी इट इज बीइंग सिलेक्टेड, और अंदर अगर मैं कर रही हूँ क्लिक, तो ये मेरा चार्ट एरिया है कि जहां तक चार्ट मैक्सिमम प्लॉट हुआ है 180 तक स्केल जा रहा है मेरा 164 तक, तो ये 164 तक ये मेरा प्लॉट एरिया है. नेक्स्ट पॉइंट, माय नेक्स्ट कंपोनेंट इज legend. Legend means the colors, the symbols, the patterns which are assigned to the data series. अब जैसे मेरे इंग्लिश को ब्लू कलर असाइन हुआ है, हिंदी को ऑरेंज और टोटल को ग्रे. तो ये जो कलर्स मैंने चूज करे हैं अपने इसको डेटा सीरीज को, दीज आर द लेजेंड्स.
ठीक है, कलर्स और पैटर्न भी हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम कलर लेते हैं, वी कैन टेक द पैटर्न ऑल्सो. नेक्स्ट माई component is my chart title. See, my chart title is this, and I can edit it also. I can write here report card of class 7. ठीक है, और just the report, not card, report of class 7. तो ये मेरी चार्ट टाइटल है कि चार्ट की हेडिंग है. ठीक है, इट डिस्क्राइब द एम एंड द कंटेंट्स ऑफ द चार्ट, कि चार्ट के अंदर किस चीज का चार्ट बनाया हमने और क्या एम है इसका, क्या इसके अंदर होगा. ठीक है, लास्ट इज माई ग्रिड लाइन्स. ग्रिड लाइन्स मीन्स द मीनिंग ऑफ ग्रिड. ग्रिड का मतलब होता है बॉक्सेस. अब जैसे आप एक्सेल देख रहे हो ना, ये सारे बॉक्सेस ही तो है, ये भी तो एक ग्रिड सी है. तो ग्रिड लाइन का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हमारी पूरे चार्ट में आ रही है. ठीक है, तो वी कैन सी इफ आई क्लिक ओवर दिस ग्रिड लाइंस. ठीक है, तो ये देखो जैसे मैंने एक्सेल में ग्रिड लाइंस को खत्म कर दिया. ठीक है, यू कैन सी एक्सेल my all the columns and they have disappeared because I have checked out this grid line. अगर मैं दोबारा इसको grid line को टिक कर रही हूँ, then I will be able to see my boxes, cells. These are the components. Number 1, chart area, category axis, value axis. These are my components of chart. ठीक है, value axis and my data series, my category name, plot area, legend, chart title and grid lines. I hope these are clear, and this always makes an important question. Then types of charts. Now coming back to chart types. जो पहला चार्ट है, चार्ट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. ये जो मैंने लिया है, दिस इज ऑफ माई कॉलम चार्ट. ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग में चार्ट लिया था तो मैंने कॉलम के ऊपर सिलेक्ट कर लिया था. ठीक है, तो चार्ट टाइप कुछ अगर आपने चेंज करना है, हमने कुछ नहीं करना, वी विल जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस चार्ट एंड चार्ट टाइप इधर से आ जाएगा हमारा. ठीक है, और यहाँ से हमारे पास देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स, कॉलम, लाइन, पाई, बार. सो माय फर्स्ट चार्ट इज बार. I'll select on this and OK. You can see my chart, my column chart has been changed into bar chart. Now bar chart means, as the name indicates, bar. Bar means long rectangular rods. ये जैसे rectangular boxes हैं, इनको bars बोलते हैं. ठीक है, ये vertically या horizontally chart area के ऊपर place की जाती है. This is my bar chart. Also I can see the stacked one also. Right? I can see the stacked bar. Stacked. Now this is my stacked bar chart. Stacked मतलब कि stacked में मुझे relationship समझ आ रहा है. ठीक है, ये देखो इंग्लिश का क्लियर है हेमंत के. ठीक है, 65. ये ऑरेंज जहां से हुआ ये हिंदी का और ये टोटल. तो मतलब वो सारा रिलेशनशिप समझ आ रहा है कि हेमंत के ये सारे स्टूडेंट्स हैं, अंजू के इंग्लिश का ये स्लॉट है, ये हिंदी के इतने हैं और ये टोटल यहाँ तक आ रहा है. ठीक है, दिस इज माय स्टार्ट चार्ट. सेकेंड इज कॉलम चार्ट. कॉलम चार्ट जो मेरा प्रीवियस चार्ट था, ठीक है, जो मैंने सबसे पहले लिया था, माय कॉलम चार्ट. दिस वाज माय कॉलम. माय द डेटा सीरीज आर प्लेस्ड इन द टाइप ऑफ कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल, vertical columns. Then is my third one is the line chart. Line chart means this one. ये मेरा लाइन चार्ट हो गया. लाइन चार्ट मीन्स कि अब जो डेटा सीरीज है वो बार्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार्स की बजाय सिंपल पॉइंट से डाटा हुआ है, प्लॉट हुआ है और उसको लाइन की मदद से उसको कंबाइन कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है. So it is in the form of lines and it is used to illustrate trends and data at equal intervals. ठीक है, जैसे ग्राफ पेपर पे नॉर्मली आप प्लॉट करते हो. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके फिर उन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं. देन आई हैव एरिया चार्ट. दिस इज माय एरिया चार्ट. ओके, एरिया चार्ट मीन्स कि कैसे एरिया कवर हुआ है. इट इज अ यूनिक वर्जन ऑफ द लाइन और कॉलम. इसमें इट इज अ ग्रेटर विजुअल इम्पैक्ट देन द लाइन चार्ट. लाइन चार्ट से ज्यादा क्लियर मेरा
एरिया चार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज XY चार्ट। बेसिकली यू शुड नो दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ये XY चार्ट्स है कि जिसमें खाली हमारा जो डेटा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की न्यूमेरिकल वैल्यू ली हुई है और उसको सिर्फ प्लॉट करके दिखाया हुआ है, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्स एंड इंडिपेंडेंट वाई। नेक्स्ट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको पता है पाई इज अ फॉर्म ऑफ सर्कल, तो ये मेरा पाई चार्ट आ गया है। सिंपल, पाई चार्ट resembles in the form of your like circle. Okay, now creating a chart. Now I just undo these charts, come back to my original column chart जो मेरा सबसे पहले था। Okay, now creating a chart in Excel. Now how to create a chart in Excel? I have told you, मैं दोबारा से आपको चार्ट बनाना बताती हूँ। I'll just delete it. What you will do, you have to select the range. जो आप अब चार्ट हवा में तो बनेगा नहीं, चार्ट will need some source input. तो that source data और information मेरी वर्कशीट के अंदर है, you can see. तो चार्ट इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर बनेगी। अब मैंने इस पर इंसर्ट टैब पे क्लिक करा, आई कम टू माई चार्ट ग्रुप और ये मेरे चार्ट्स हैं। जिस भी तरह का चार्ट आई वांट, सपोज आई एम टेकिंग माय column chart. This is my column chart and I can take it. I can increase the or decrease the size accordingly and I can change the color scheme and all that. Okay. So this was about my charts. Next is how to okay, this was my chart. Next was my okay, another thing, अगर आपको सिर्फ एक ही रेंज चाहिए, you just want only this one only, कि आपको सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स लेने हैं, बच्चों के 5 बच्चे हैं, उनका सिर्फ इंग्लिश का ही देखना है चार्ट एनालिसिस, तो यू जस्ट गो ऑन इंसर्ट चार्ट और सिंपल आपने सिर्फ इंग्लिश का ही ले लिया, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ इंग्लिश का ही वो आ जाएगा, राइट, इंग्लिश की चार्ट बन जाएगा कि अंजू इज गेटिंग 65, मंजू इज गेटिंग 76, रंजना इज 78, कीर्ति 56 एंड इवन सिर्फ एक ही कॉलम का ले लिया। So this is how you do it. Next is, and I also told you कि चार्ट टाइप बड़ा इजी है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अगर आपको चार्ट को टाइप्स में चेंज करना है, पहले तो चार्ट को डबल क्लिक करो, ऊपर आ जाएगा चार्ट टाइप, यहाँ से आप लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, radar, combo, there are so many types of charts that also you can take it accordingly, you can take it. Okay, next come to okay, formatting a chart. Now what do you mean by formatting? Formatting means improving the appearance of a chart. फॉर्मेट करना किसी चीज को मतलब किसी की लुक्स को इम्प्रूव करना। तो आप चार्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? वेरी इजी। अब चार्ट को हम उसका टाइटल देके, टेक्स्ट चेंज करके, फॉन्ट, कलर, विड्थ, बॉर्डर, लेजेंड, डाटा सीरीज, ये सारी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स चेंज करके वी कैन change the your format the chart. So how you will go, we'll click on insert tab, ठीक है, then insert tab में we can choose any of your charts, वो मैं हम पहले ही कर चुके हैं और हमने सपोज हमने तो लिया ही हुआ है चार्ट, ठीक है। जिस भी चीज को आपने फॉर्मेट करना है हमने उसको डबल क्लिक करना है, ठीक है, या डबल क्लिक करेंगे या आप उसको राइट क्लिक करेंगे। अभी प्लॉट एरिया है, दिस माय प्लॉट एरिया, ठीक है, यू कैन सी द ऑप्शंस आर हियर। अगर आप राइट क्लिक कर रहे हैं फॉर्मेट प्लॉट एरिया, ये मेरा आ गया है, वैसे तो क्लिक करने से ही आ गया है ये फॉर्मेट प्लॉट एरिया, ठीक है, यू कैन सी ना फॉर्मेट प्लॉट एरिया। सो आई कैन गिव फिल, फिल में अगर आपको कोई कलर देना है, उसको नो फिल करना है, ग्रेडियंट देना है, ठीक है, दैट यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। Border, if you want to give some border to your chart, okay, and I'm giving the red border. See, this is my red border आ गया plot area पे, ठीक है। Then width, you कितना
बॉर्डर कितना थिक होगा. यू कैन सी ना, एज आई एम इंक्रीजिंग द थिकनेस इट इज इंक्रीजिंग द, likewise it is increasing the thickness. You can see here कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का. आप चाहे तो येलो ले लीजिए जो आपको विजिबल हो, या रेड. ओके, तो वो सारी इसकी फर्दर इसकी वो है कि आप क्या क्या फॉर्मेटिंग दे सकते हैं. आपने डैशड लाइन देनी है, या इस तरह की देनी है, या सॉलिड देनी है, ओके, या डैश देनी है, डॉट्स में देनी है. So these are the types of formatting options. Second is inserting the chart title. Now I want to just come back to Control Z, undo, undo. Yes, I like the red one. Yes, this is it. Now suppose you want to again, okay, again I want to give the chart title. How will I give? अब मैंने चार्ट तो लगा ली है, चार्ट का टाइटल कैसे देंगे? We'll just go क्विक लेआउट पे गए, ठीक है, यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट. चार्ट एलिमेंट्स में आपको क्या चीज डालनी है? हमें चार्ट टाइटल डालना है. नन है, नन तो बाय डिफॉल्ट है. अबव चार्ट, सेंटर्ड एंड और भी ऑप्शंस हैं. तो अबव चार्ट ले लेते हैं. यहाँ पे हमने पहले भी लिखा था लाइक रिपोर्ट ऑफ क्लास 7. सो दिस इज माय चार्ट टाइटल. ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग. अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है वो कैसे करेंगे? हमने अगेन देखो, जिस भी चीज को फॉर्मेट करना है आपने उसको क्लिक करना है. साथ ही मेरा फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आ गया है, एंड यू कैन जस्ट you can fill it if you want with some color, right? You can give the color and you can give the border. जैसे आप बाकी चीजों को मैंने बताया था वैसे आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, थिकनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है. So this is how it was. Suppose I've taken your green color, right? तो ये मैंने चार्ट टाइटल को भी देखो फॉर्मेटिंग कर दी है उसकी. दूसरा तरीका है, आपकी बुक में दो है. एक तो सिंपल तरीका है कि किसी भी चीज की फॉर्मेटिंग करनी है क्लिक कर दो, देखो वो साथ ही आ गया. दूसरा तरीका है राइट क्लिक कर दो. बिकॉज माई इज एन एडवांस वर्जन. व्हाट हैपन कि बेसिकली हम जो विंडोज 2007 है हम उसमें राइट क्लिक करते हैं. राइट क्लिक करते हैं, ये देखो आ गया ना फॉर्मेट चार्ट टाइटल, फिर ये आपका बॉक्स आ गया, ठीक है. So the method 1, method 2, it's given on page number 54. I have told you. Now formatting, the fourth is formatting the axis. What is axis? You can see the axis. Axis side में आ रही है जिसमें आपके x axis और y axis की वैल्यू आ रही है, ठीक है. That is my axis. Now how you will do? हमने y axis की तरफ पॉइंट करा है, ये देखो एक्सेस आ गया. जैसे ही मैंने क्लिक करा या फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन आ गया, ठीक है. पर हमें इसका चेंज करना है. इसका ऑप्शंस में जाएंगे. ऑप्शंस में वी विल टेक द योर विल गो टू द फर्स्ट ऑफ ऑल विल पॉइंट द माउस एट y, ओके, देन राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट ऑन द फॉर्मेट एक्सेस. वो हमें राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं, हमारे सामने ही आ गया, ठीक है. फॉर्मेट एक्सेस में जाएंगे, वहां पे एक्सेस ऑप्शन आएगा एक, ठीक है. इस एक्सेस ऑप्शन के अंदर हमारा एक्सेस ऑप्शन डिफॉल्ट से आया हुआ है, ठीक है. क्लिक ऑन द फिक्स्ड वन, ठीक है. वर्टिकल वैल्यू एक्सेस आ गया ना यहाँ पे, तो इट इज बाय डिफॉल्ट, ठीक है. एक्सेस ऑप्शंस ये आ गया मेरा एक्सेस ऑप्शंस इसके अंदर. फोर्थ इसमें था मिनिमम. आपको क्या वैल्यू लेनी है? मिनिमम, जैसे मिनिमम मेरी 0 है और मैक्सिमम मेरी 9 है. आप इसको मिनिमम सपोज हमने ले ली है 20, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं मिनिमम 20 तो 20 से कम ज्यादा ही है, हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. सो माय I'll take it as 20. We'll click on the axis, click on the fixed radio button for minimum field and enter 20.
major is 10 and minor is 2. I'll tell you about these units also. Okay, to see the fixed radio button, क्योंकि आप इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें इसको फिक्स रेडियो बटन को पहले वो करना है, क्लिक करना है. ठीक है, I can see here access options. Again, my fourth one, bounce minimum is 1 second 20 and maximum is my, suppose मैंने यहाँ पे 100 ले लिया. ठीक है, ठीक है. So I'll click on see my this axis has been changed. बस हमने मिनिमम और मैक्सिमम को चेंज करना है. ठीक है, तो हमारा एक्सिस, इसी तरह से आप एक्स एक्सिस को भी चेंज कर सकते हैं. राइट, कैन चेंज द एक्स एक्सिस ऑल्सो. Next is formatting a legend. Now, which is my legend? My legend is this. Legend is a box that I didn't. Definition is very important, and I'll just once again I'll select this complete chart and just select this one. Okay. Okay. Now this is, अब इसमें क्लियर है मेरा लेजेंड. कैन यू सी दिस इंग्लिश हिंदी टोटल? इंग्लिश को ब्लू से करा है, हिंदी को ऑरेंज से और टोटल को ग्रे से किया है. This is my legend box because it is telling me, it is identifying the patterns, colors assigned to the data series. ठीक है. So how we will do it? We'll right click on the legend boundary. ये मेरा legend boundary बस मैंने क्लिक ही करा है. आप just click it and I can see. सेम थिंग फॉर्मेटिंग में वही है कि आपको फिल कैसे करना है, इसको किसी कलर से फिल करना है. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितनी देनी है, बॉर्डर कितना देना है, एंड कलर, बॉर्डर का कलर क्या लेना है, एंड ऑल दैट थिंग्स. तो जिस भी चीज को आपने एलिमेंट को करना है, यू विल जस्ट क्लिक दैट. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज. लास्ट टॉपिक ऑफ योर कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट इज फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज. अगेन हमने क्लिक करा है इसको, अगेन हमने इसको कलर इसका चेंज कर दिया है. ठीक है, यू कैन चेंज द कलर टू सम अदर कलर ऑल्सो. ओके, now the second last topic is sorting data. Next is sorting data. Sorting data. Sorting data means to arrange the data in your increasing or decreasing order. Okay, sorting का मतलब होता है डाटा को अरेंज करना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में. नाउ सी दिस वर्कशीट. अब ये है इंग्लिश में मार्क्स है 65, 76, 76, 56, 77. नाउ आई वांट दैट इन दिस कॉलम इंग्लिश के मार्क्स मेरे सॉर्ट हो जाए, मतलब जिसमें सबसे कम हो, फिर उससे ज्यादा हो और सबसे ज्यादा लास्ट में आए. आई विल गो ऑन डाटा एंड सॉर्ट. ये देखिए A to Z का मतलब है, यस, दिस इज माय सॉर्ट. ठीक है, सॉर्ट बाय कॉलम सी. अब इंग्लिश का मेरा कॉलम सी है. ठीक है, सॉर्ट ऑन वैल्यूज. यस, वी वांट टू चेंज द वैल्यूज. हम वैल्यूज के ऊपर ही सॉर्टिंग कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. इफ आई क्लिक ऑन ओके, तो यू विल सी दैट माय, वन सेकेंड, हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, नाउ क्लिक ऑन डेटा, sort values smallest to largest. Okay, now you can see कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं, वो आ गई सबसे पहले. ठीक है, फिर उसके ये सारे इंग्लिश के मार्क्स सारे हमारे सॉर्ट हो गए हैं. राइट, देन इज आई जस्ट undo this thing, undo. Okay, next is filtering data. Filtering data means कि I want to filter my data. Filtering means कि हमने सिर्फ वही चीज देखना चाहते हैं जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो.
The filter feature allows you to see only those records that you want to display while it hides the rest of the data temporarily from the view. So इसको हम ऑटो फिल्टर भी कहते हैं. अब मान लो हम चेंज कर देते हैं मार्क्स. सपोज लास्ट के 3 बच्चे हैं, उनके मार्क्स 100 है इंग्लिश में. ठीक है, ओके. तो हमें सिर्फ उन्हीं बच्चों के मार्क्स चाहिए इंग्लिश में जिनके मार्क्स 100 हो. ठीक है, सिर्फ वही बच्चे चाहिए हमको. सो विल गो ऑन अगेन डेटा टैब, फिल्टर. ये एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आ गया है. इट इज आस्किंग यू व्हाट. आई जस्ट सिलेक्ट ओनली 100. ओके, तो मेरे पास सिर्फ वही बच्चे आ गए जिसके खाली 100 मार्क्स थे. ठीक है, होगी ना सॉर्टिंग कि बाकी बच्चे नहीं देखने मुझे, जिसके सिर्फ 100 थे वही आ गया. और इफ आई क्लिक ऑन हियर अगेन, देन मेरा वापस वो चीज हट जाएगी. राइट. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, this is all about my filter. So thank you students. Please read your chapter. This was all about your advanced feature of Excel, and in the next session I'll share you the answer key of the chapter. Thank you so much and have a blessed and good day.